Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am going to deliver lecture on the constitutional development of Pakistan. In the previous classes, we have discussed regarding the salient features of the Constitution of 1956. In the last, we are discussing the abrogation of 1956 Constitution. The political instability started with the assassination of Prime Minister Liaquat Ali Khan in 1951, continued unabated till 1958. जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी शुरू हुई थी लियाकत अली खान की असैसिनेशन के बाद 1951 से, ये सिलसिला जो है कंटिन्यू रहा 1958 तक. Unfortunately, the 1956 Constitution could not control the situation. बदकिस्मती से 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इस सूरत हाल को टूट ना कर सका, इस सूरत हाल से नबर्द आजमा ना हो सका. A bird eye view of the events unfolding during 1951 to 1956 would reveal that the delay on the part of the Basic Principle Committee to draft a constitution hurdles in the way of Basic Principles Committee. The change of three prime ministers, Liaquat Ali Khan, Khwaja Nazimuddin, and Muhammad Ali Bogra, during 5 years, 1947 to 54, the dissolution of the first Constituent Assembly and legal battle after it, the undemocratic attitude of two governor generals, General Ghulam Muhammad and Iskandar Mirza, are the entry of and civil and military bureaucracy into political cabinet of talents in 1954, and the functional fighting in Muslim League were some of the destabilizing factors. Had the 1956 Constitution been implemented in letter and spirit, the history of Pakistan would have been different. Unfortunately, everyone tried to bypass the Constitution. For instance, it was promised that soon after enforcement of the Constitution, general election based on adult franchise would be held, but the same promise was not kept. Political instability can be judged from the fact that during 1/2 year lifespan of the 1956 Constitution, five prime ministers were installed and deposed. They were Chaudhry Muhammad Ali, 12 August 1955 to 12 September 1956; Hussain Shaheed Sohrawardy, 12 September 1956 to 17 October 1957; Ibrahim Ismail I. Chunrigar, 17 October to 1957 to 16 December 1957; General Ayub Khan, 24 October 1958 to 28 October 1958; and Feroz Khan Noon, 16 December 1957 to 7 October 1957. Of the five prime minister, only one, that is Chaudhry Muhammad Ali, could complete 1 year. The rest ruled for months, weeks, and even days. The man behind these frequent changes
in government was President Iskandar Mirza. He did not believe in democracy and is on record to have opened that there should be monarchy in Pakistan. Interestingly, he devised a plan whereby democracy was to be replaced by a ruling junta headed by him with General Ayub Khan as a partner. He issued a proclamation of martial law on 7th October 1958 with the following result. The 1956 constitution was abrogated. The central and provincial government were dismissed. The national and provincial assemblies were dissolved. All political parties were banned. Martial law was imposed. 1956 के जो कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट किया गया, ख़त्म किया गया, उखाड़ फेंका गया, उसके पीछे जो वजूहात थी उसमें सबसे बुनियादी वजूहात द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, सियासी हालात का मुस्तहकम ना होना। और ये सियासी हालात जो गैर मुस्तहकम होना शुरू हुए, ये जनाब प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली ख़ान की बहीमाना कत्ल के बाद ये सिलसिला जो है वो शुरू रहा और ये फिर 1958 तक ये सिलसिला चलता रहा। बदकिस्मती से 1956 की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो और जो कॉन्स्टिट्यूशन था इस सूरत हाल पर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल ना कर सका। बुनियादी तौर पर 1951 से लेके 56 तक ये बात स्टडीज़ के दरमियान, तारीख़ के दरमियान हमें मालूम होती है कि ये वो सिलसिला था कि जिसमें बेसिक प्रिंसिपल कमेटी की रिपोर्ट्स को डिले रखा गया और एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेसिक प्रिंसिपल कमेटी की रिपोर्ट के मद्देनज़र में जो है वो ना बनाया जा सका। इसी दौरान प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली ख़ान, ख्वाजा नाजिमुद्दीन प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अली बोगरा ड्यूरिंग 5 ईयर्स 1947 से 54 तक ये तब्दील हुए और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिसॉल्व कर देना भी जो है एक खला था जिसकी वजह से कानूनी प्रोसेस, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट ना हो सका। गैर जमहूरी रवैया गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद एंड इस्कंदर मिर्ज़ा जो है ये इस पूरे निज़ाम की तबाही का पेश खेमा साबित हुआ, निज़ाम की तबाही का सबसे अहम वजह साबित हुई। और फिर इस दौरान हर शख्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को बाईपास करने लगा। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के फ़ौरन बाद ही जनरल इलेक्शन का वादा किया गया कि जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल होगा तो फिर एक जनरल इलेक्शन करवाए जाएंगे और ये जनरल इलेक्शन जो है वो बुनियादी तौर पर ये वादा पूरा ना किया गया। इसी दौरान जो है मुख्तलिफ प्राइम मिनिस्टर्स, तकरीबन 5 प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर आज़म जो है वो तब्दील होते रहे, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, और बामुश्किल एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो उसमें से 1 साल जो है वो पूरा कर सका। इन द रिजल्ट ऑफ दिस कन्फ्यूजन, इस कन्फ्यूजन की वजह से जो एक डेमोक्रेसी का जो प्रोसेस था उसको सेटबैक पहुंचा। वो डेमोक्रेसी का प्रोसेस जो है वो सबोताज हुआ और मुल्क में डेमोक्रेसी को तब्दील कर दिया गया और एक मोनार्शियल सिस्टम के तौर पर जो है वो निज़ाम को नाफिज करने की कोशिश की गई। बहरहाल जनरल अयूब खान और इस्कंदर मिर्ज़ा ने एक जॉइंट वेंचर किया और इस वेंचर के नतीजे में जो है 7 अक्टूबर 1958 को जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को जो है वो एब्रोगेट कर दिया गया।
बुनियादी तौर पर जो है सूबाई और सेंट्रल गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया गया और नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज को डिसॉल्व कर दिया गया और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पर पाबंदी लगा दी गई और फिर मार्शल लॉ को जो है वो इम्पोज कर दिया गया। इन द सेम प्रोक्लेमेशन, इसी एलानिए में President Mirza enumerated certain reasons as justification for imposition of martial law. उसने कुछ वजूहात इस तनाजुर में पेश की कि ये क्यों ज़रूरी हो गया था कि मार्शल लॉ को जो है वो नाफिज किया जाए। These included ruthless struggle for power by politicians. उसमें ये बात बताई गई कि पावर लस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस जो है वो उसमें नुमाया अहमियत रखता है। फूड क्राइसिस, ग़ज़ाई अजनास की किल्लत, थ्रेट ऑफ ब्लडली रेवोल्यूशन, खूनी इनकलाब की धमकी, द असैसिनेशन ऑफ डिप्टी स्पीकर इन ईस्ट पाकिस्तान, मशरकी पाकिस्तान में डिप्टी स्पीकर का बहीमाना कत्ल, नेगेटिव रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, गैर जिम्मेदाराना रवैया पॉलिटिकल पार्टीज का, inefficiency of successive ministers, shattering of people's confidence over democratic setup, लोगों का यकीन का ख़त्म हो जाना डेमोक्रेसी पर से, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन से और डेमोक्रेटिक प्रोसेस से, over democratic setup and unworking ability of the 1956 constitution. His devised plan whereby democracy was to replace, उसने तजवीज़ किया एक मंसूबा कि डेमोक्रेसी सिस्टम को सदारत के निज़ाम से जो है वो तब्दील कर दिया जाए। With General Ayub Khan as a partner was aborted by the journal on 27th October. Ayub Khan dethroned. Ayub Khan ने 27 अक्टूबर को इस्कंदर मिर्जा को तख्त से डिथ्रोन कर दिया और he himself become the president of पाकिस्तान, और वो itself जो है president of पाकिस्तान जो है वो बन गए। तो ये एक मुख्तसर सी जो एक हिस्ट्री है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 को जो है वो एक्सप्लेन